Hello, good morning, beta. In previous video, we discussed about the FPTP system in India. First past the post system, why adopted in India. In now today's class, we will discuss about the reservation of constituencies. First of all, we need to understand the idea of the reservation. What is reservation? And why this concept was adopted by our constitution makers in our constitution. And meaning of constituencies already I have discussed with you, a particular area and the population of that area through by which a representative is elected. Reservation, the idea of reservation was adopted by our constitution makers to provide a facility to develop the standards of life to the disadvantaged people, to bring them in the mainstream of the society. They have been given some special advantages in our constitution in the political scenario of our country. Let us discuss this topic, reservation of constituencies. We have noticed that in the FPTP election system, the candidates who secure the highest vote, FPTP system में जो कैंडिडेट क्या करते हैं, secure highest votes in the particular constituency, किसी एक particular constituency में, any constituency is declared elected. वो जो कैंडिडेट है will be declared elected, means उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा, who will secure highest vote in a particular constituency. This is FPTP system. This often works to the disadvantage of the smaller social group. अब this means FPTP system, इसकी जो एक disadvantage क्या है? This is the sometimes जो smaller social sections होते हैं, they remain behind. They did not get proper chance to come into the power through elections. This is even more significant in Indian social context. ये Indian social context में ज़्यादा significant है, because we have faced colonial rule and pre-colonial rule, we faced the Muslim empire in our country, Mughal empire. So somewhere we are having the untouchability and caste system in our society, and so-called deprived section of the society, they remained away from the power. We have had a history of caste-based discrimination. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere, in the oppressed social group may continue to remain unrepresented. What does it want to say? He says that we have had a history of caste-based discrimination. Just before I told you that in British rule, pre-British rule, we had a caste-based history in our society. And there was a discrimination caste-based. As you know, society was divided into 4 varnas. So lower, the 4th varna, Shudras, they were the subject of discrimination in our society. And FPTP electoral system can mean the dominant social, somewhere it means the dominant social group, means so-called first 2 groups of our one systems and caste can win everywhere. They can win everywhere. They can take advantage of their social dominance in election as well. And the lower caste continued to remain unrepresented.
unrepresented in our political system. Our constitution makers were aware. They were aware of this difficulty that India has a caste-based history and discrimination was there, and the need to provide a way to ensure. They were aware कि there is a need to provide a way, एक ऐसा रास्ता उनको provide कराना जिससे ensure हो सके fair and just representation to the oppressed social group, ताकि oppressed social groups जो already oppressed थे उनको fair and just representation provide कराया जा सके in our election so that they can come in power and solve their problems, resolve the problems of their people. So they adopted this reservation system. The issue was debated even before independence, and the British government had introduced separate electorate. There was a debate. British government wanted to introduce separate electorate for oppressed classes, scheduled caste or scheduled tribes. But the leaders of our country, leaders of National Congress, freedom fighters, they were against this system. This system means that of electing a representative from a particular community. जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था उसमें कैंडिडेट चुना जाएगा पर्टिकुलर कम्युनिटी से. only those voters would be eligible who belong to that community. और जिस कम्युनिटी से भी कोई कैंडिडेट चुना जाएगा उस कम्युनिटी या कास्ट के लोग ही उसको वोट कर सकते थे. नॉट इन जनरल पब्लिक उसको वोट नहीं कर सकती थी. सपोज एससी कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना है तो सिर्फ एससी कैटेगरी के लोग ही उसको वोट कर सकते थे, दूसरे नहीं. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit our purpose. Constituent Assembly के members ने कहा कि ये हमारा पर्पज नहीं है. It will create the separation in our social system. Division ले आएगा, divide कर देगा society को. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituencies. इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस ना करके उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिस्टम को अडॉप्ट किया. अब ये है क्या? अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये आंसर है. इन दिस सिस्टम all voters in a constituency are eligible. All voters means belongs to all caste and community and religion से बिलोंग करने वाले सभी वोटर एलिजिबल होंगे to vote, but the candidate must belong to only a particular community. Suppose SC ST community का कैंडिडेट के SC ST community के लिए सीट रिजर्व करी है तो सिर्फ उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट ही इलेक्शन कंटेस्ट या फाइट कर सकता है, लेकिन उसको वोट जो है सभी कम्युनिटीज सभी कास्ट के लोग देंगे. और सोशल सेक्शंस फॉर विच द सीट इज रिजर्व, जिसके लिए सीट रिजर्व करी गई है वही इलेक्शन फाइट कर सकता है. ये है, दिस इज द रिजर्वेशन सिस्टम. ये आंसर है किसका? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है. देयर आर सर्टन सोशल ग्रुप्स विच में बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो थ्रू आउट द कंट्री फैले हुए हैं. इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोज एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयर मेंबर्स may not be sufficient to able to influence a victory of a candidate. और किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इतने वोटर्स नहीं है या इतनी पॉपुलेशन नहीं है जो उस कम्युनिटी के कैंडिडेट को विजय हासिल करने के लिए या इलेक्शन को विन करने के लिए सफिशिएंट हो. However,
Their number of may not be sufficient to be able to influence a victory of candidate. However, taken across the country, they are a significantly sizable group. लेकिन सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन किसी कैंडिडेट को इलेक्शन विन कराने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. सो अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी. उन लोगों के प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं, दे किसी सोशल ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी है सोसाइटी में, दे कंसिस्ट देयर बट दे डू नॉट हैव अ सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन. तो ऐसे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इसको हम माइनॉरिटी बुला सकते हैं यहाँ पर, ऐसी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी, जरूरी हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स क्या देता है? फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रिजर्व हो जाती हैं इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है ऐसी माइनॉरिटीज़ के लिए जो एससीज हैं या एसटीज हैं, उनकी सीट्स रिजर्व हो जाएंगी कहाँ पर? इन लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दोनों जगह. दिस प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रोविजन पहली बार कितने टाइम के लिए बनाया गया था? 10 years के लिए बनाया गया था. व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, एट दैट टाइम दिस प्रोविजन वाज मेड ओनली फॉर 10 year, यानी कि 51 to 60 years के लिए, 1960s तक. ठीक है. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बट बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और गवर्नमेंट को ये लगा कि अभी ऐसी माइनॉरिटीज़ के लिए एससी एसटीज और दूसरी माइनॉरिटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको अभी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, अभी वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुए हैं, दे डिड नॉट येट केम टू इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. तो हर 10 साल के बाद इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है और ये अब 10 तक इस बुक में दिखाया गया है और अब फिर इसके बाद 20 तक, और अब नई अमेंडमेंट आकर के इसको 2030 तक इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जा चुका है, 2030 तक. द पार्लियामेंट कैन द पार्लियामेंट कैन टेक ए डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट. अब क्वेश्चन आता है कि जो रिजर्वेशन को ख़त्म करना है, ठीक है, और या इसको एक्सटेंड करना है, हु विल टेक इनिशिएटिव या हु हैज़ द पावर टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन और टू एंड द रिजर्वेशन. तो आंसर है हमारी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन को आगे एक्सटेंड कर सकती है या इसको ख़त्म कर सकती है. व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स, जब भी रिजर्वेशन का पीरियड एक्सपायर्स होता है तो पार्लियामेंट हैज़ टू टेक डिसीजन व्हाट टू डू विद दिस प्रोविजन. The number of seats reserved for both of these groups means SC or STs is in proportion to their share in the population of India. जो सीट्स रिजर्व होती हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर रिजर्व होती है एससी और एसटीज के लिए, तो वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी पॉपुलेशन को कंसीडर करके ही उस सीट को रिजर्व किया जाता है. एक टेन्योर के लिए, 2 टेन्योर के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाता है. और इन दीज टेन्योर्स ओनली द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी कैन contest election. Today, of the 543 elected seats in Lok Sabha, in today's scenario, means how much proportion share of seats is reserved, कितनी सीट्स आज किसके लिए रिजर्व हैं. तो बेटा एक ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकसभा की टोटल सीट्स है 545, इलेक्शन कितने पे होता है? 543 पर इलेक्शन होता है.
+2 कौन है? ये +2 है एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब 543 इलेक्टेड सीट्स में से जो 543 इलेक्टेड सीट्स हैं, 543 इलेक्टेड सीट्स में से जो 79 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 41 सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्व्ड हैं। ये क्वेश्चन है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड। अब क्वेश्चन आता है कि डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करनी है। ऑन व्हाट बेसिस दिस डिसीजन इज टेकन, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिपेंडेंट। अब ये आंसर है यहाँ पर, दिस डिसीजन इज टेकन बाय इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन। कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। इसको याद रखें कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, कितनी साल के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। ये कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी। द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। एंड वर्क इन कोलैबोरेशन ऑफ द, और किसकी कोलैबोरेशन में काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन? इलेक्शन कमीशन की कोलैबोरेशन में काम करता है। ये यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट रिमेंबर देम। देन इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये किस पर्पज के लिए अपॉइंट किया जाता है? ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल ओवर द कंट्री, के कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज, कितना एरिया कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेना है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में लेना है। बाउंड्रीज को ड्रॉ कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है। A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending upon the proportion of SC or ST in the state. अब कोटा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि एक स्टेट में, सपोज करो इन हरियाणा, इन स्टेट असेंबली में वी आर हैविंग 90 सीट्स। अब 90 सीट्स में से हमें कितनी सीट्स रिजर्व रखनी है एससीज और एसटीज के लिए? हरियाणा में एसटीज नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एससीज के लिए जो है रिजर्व होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ एससीज, एससी क्लासेस इन हरियाणा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज, जैसे ही बाउंड्री ड्रॉज करेगा, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी कॉन्स्टिट्यूंसी। अगला काम क्या करेगा? वो देखेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है। पहले डिसाइड करेगा कि बाउंड्रीज डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूंसीज की, फिर कंपोजिशन एट पॉपुलेशन पर देखेगा कि किस कास्ट या रिलीजन की कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है। दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन आर रिजर्व्ड फॉर। अब ये देखेगा कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी, और जिसमें शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है वो एससी के लिए रिजर्व हो जाएगी। इन द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एंड हु अपॉइंटेड एंड इन हुज कोलैबोरेशन इट वर्क्स। It picks constituencies that have higher proportion of scheduled caste of population, but it also spread these constituencies in different regions of the state. This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. These reserved constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is अंडरटेकन। और जो भी ये जो रिजर्वेशन होती है, ये क्या होती है? रोटेट होती रहती है।
एक बार के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी, दूसरी बार के लिए दूसरी, तीसरी बार के लिए तीसरी, इस तरीके से रोटेट होता रहता है, ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी SC/STs हैं, माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे एंड दे गेटिंग चांस टू कम इनटू द पावर. Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged. Similar दूसरे जो disadvantaged groups हैं उनके लिए similar reservation नहीं है. Of late there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. और ये समय समय पर जो ना डिमांड होती रही है कि वुमेन के लिए भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन होना चाहिए. Given the fact that very few women are elected to the representative bodies and demand of reservation of 1/3 seat, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है हमारी कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, तो वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन, कितनी रिजर्व सीट्स की रिजर्व की मांग की गई है, 1/3 मांग सीट्स की मांग की गई है. ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज बीन प्रोवाइडेड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. अब जो है जो वुमेन का लिए जो रिजर्वेशन है वो रूरल और अर्बन दोनों बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज में दोनों में डिमांड करी गई है. रूरल में पंचायत में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में, MLAs और MP इलेक्शंस में, हर जगह इनके 1/3 सीट्स की डिमांड की गई है. We shall discuss this in the chapter of local government, as similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment to the constitution. Such an amendment has been proposed several times in the parliament but has not yet been passed. So, तो क्या है कि जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, ये जो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और इस अमेंडमेंट को करने के लिए लोकसभा में मैनी टाइम्स जो ना बिल पेश किए जा चुके हैं, और लगभग 3 दशक हो गए हैं. ठीक है. तब से जो है ना ये जो अमेंडमेंट बिल है ये हमारे पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है. ठीक है. इसको अभी तक जो है ना पास नहीं किया गया है. जब भी पास होगा वुमेन को 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड हो जाएगा. लेकिन जो एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ रही है, जो दूसरी ऐसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर आल्सो मच अवेयर और दे ट्राई टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन. बट जब कॉन्स्टिट्यूशनली 1/3 आ जाएगा तो इट विल सिक्योर ए गुड पोजीशन फॉर वुमेन टू कम into the power and to bring this proportion, half of the proportion of society to an equal status पर आ जाएगा. तो यहाँ तक आज हम इसको फिनिश करते हैं. तो आज हमने पढ़ा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में हमने SC और STs के लिए रिजर्वेशन देखा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर. और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने की डिमांड करी गई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पास हो चुका है या नहीं हो चुका है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है. तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे. थैंक यू वेरी मच. मे गॉड ब्लेस यू. गुड डे.